I hope you all are safe and fine at your places and doing well. So students, what we have done till now, we have done chapter number 6. So chapter number 6 हम कर चुके हैं. Question answers and bookwork of chapter 6 and bookwork of chapter 5. I will be sharing it to you. And what we are going to do is chapter number 3, managing files and folders. So फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू कि हम फोल्डर्स किस तरह से बनाते हैं और हम अपनी फाइल को उन फोल्डर्स के अंदर सेफली किस तरह से रख सकते हैं एंड हाउ दीज फोल्डर्स हेल्प अस टू मैनेज आवर सिस्टम, जो है हमारे कंप्यूटर को कैसे सिस्टमेटिकली रख सकता है और हाउ वी कैन यूज इट मीन्स दीज थिंग टू क्रिएट द फोल्डर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई फाइल्स होती हैं हम उनको सेफली एक फोल्डर के अंदर रखें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ उनका टैग देके, तो हमें चीज़ें ढूंढने में आसानी रहती है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो स्टूडेंट्स, बी विद मी, आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट द फोल्डर क्रिएट कैसे कर सकते हो और फाइल्स को कैसे फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हो और उनको वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे लोकेट कर सकते हो, ट्रांसफर कैसे कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, बी विद मी. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी लर्निंग कि हम डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर्स में कैसे रख सकते हैं. हम अपनी जो फाइल्स होती हैं उनको सेपरेटली फोल्डर्स के अंदर कैसे रख सकते हैं, फोल्डर को हम क्रिएट कैसे करते हैं एंड हम उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कैसे कर सकते हैं एंड उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 फोल्डर. मैं तीन फाइल्स बना रही हूँ, फोल्डर्स नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक 3 फाइल्स. ठीक है. सो इस फाइल में मैं क्या लिखती हूँ, इस फाइल में मैं लिखती हूँ ग्रेड. आई एम राइटिंग ग्रेड 3. सो this is I am going to write grade 3. So let me write students of grade 3. So I am writing the names of the students just like that only, not according to your grade कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है. I am just writing the name so that I can tell you कि how we can implement this thing. So let me write part Sneha, Ikisha, Neha, Advika, Vihan, Ananya. So I have written 7 names over there. Now हम इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल, सेव एज. यहाँ पे हम लोकेशन चूज करेंगे. मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर रही हूँ विद द नेम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3. सो नाउ एज यू कैन सी कि मेरी ये वाली जो फाइल है इस नेम से सेव हो गई है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3. So now I am going to open a new file and again students of grade 4. So again I am writing the names. So now I am going to write the names only like that only, not according to your grade that you are in this much grade and you are in that much grade. So first of all I am writing Uday. Uday के बाद I am writing Arman. Arman के बाद I am writing Anika. Anika के बाद I am writing Sneha. Sneha के बाद I am writing Suman. सुमन के बाद we can write Ajay and we can write
Keshav. So again I have written grade 4K 7 students. Again I am going to save the file save as and desktop के ऊपर. Now I am going to save this file with the name students of grade 4. Now this file is saved. Again I am going to open a blank document and going to give the name to the file, that students of grade 5. So students of grade 5 में I am going to write the name so okay, we will start writing the name of the students. Alisha, Avika, Anune, Mohika, or we can write Part, or we can write what name we can write? Akshita. Akshita के बाद we can write Neha. So again I have written name of 7 students like that only. So desktop के ऊपर I am saving it with name students of grade 5. So as you can see, my 3 files are there, students of grade 3, 4 and 5. So these 3 files are there. Now I want to put these files in different folders. So now look at it carefully कि how I can create the folder. To create the folder on desktop I need to right click करने के बाद as you can see new and folder. So my new folder is there now. Again I am telling you, just look at it, right click on the location, new and folder. So new folder now has been created. I am giving it the name grade 3. Enter. Now again I am going to create a new folder. Again I am telling you, right click, new and folder, and now we can give the name to the folder grade 4. Again right click, new and folder grade 5. So now now you can see I am having 3 folders over there. I have created 3 folders. So now what I will do is I will move these files to these folders. जैसे मैंने student of grade 3 बनाया, तो I will move this file to the folder grade 3. What I have to do for this, फाइल नेम के ऊपर क्लिक करूंगी, इसको ड्रैग और ड्रॉप करके इसके ऊपर ले जाऊंगी. My file now is gone. For that I need to close the file. मुझे ये फाइल सारी क्लोज करनी पड़ेंगी. My files are closed now. As you can see, my file is now moved to grade 3. अब मैं grade 3 का folder open करूंगी तो as you can see मेरी फाइल यहाँ पे है. And another way is फाइल पे जाके हम क्लिक करेंगे, इसको हम कंट्रोल C करेंगे तो मेरी ये फाइल कॉपी भी हो जाएगी. और फिर मैं ग्रेड 3 को ओपन करूंगी एंड कंट्रोल प्लस V. नाउ माई फाइल इज देयर, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3. नाउ यू कैन सी कि मेरी ये वाली फाइल जो है
यहाँ पे भी है, ग्रेड 3 के फोल्डर में भी है एंड डेस्कटॉप पे भी है। सो कंट्रोल सी से क्या हुआ, मेरी इस फाइल की 2 कॉपीज रेडी हो गई, एक डेस्कटॉप के ऊपर एंड वन इज देयर इन द फोल्डर। नाउ अगेन आई एम मेकिंग इट कंट्रोल Z। अगर मुझे इस फाइल को इस लोकेशन से उठा के और वहाँ लेके जाना है, मुझे इसकी कॉपी नहीं रखनी है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज कंट्रोल X। कंट्रोल X करने से क्या होगा, ये फाइल यहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि ग्रेड 3 की मेरी जो फाइल है यहाँ से कट होके फोल्डर के अंदर पहुँच गई है। अगेन आई एम टेलिंग यू, 3 तरीके हैं इसको ले जाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल को सीधा यहाँ से उठाया, फोल्डर के ऊपर जाके रख दिया, फाइल जो थी फोल्डर के अंदर पहुँच गई। दूसरा तरीका, इस फाइल पे क्लिक करेंगे, Ctrl+C करेंगे। अगर Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। कॉपी का मतलब क्या है, दोनों जगह पे वो फाइल रहेगी। Ctrl+V, डेस्कटॉप पे भी है और इधर भी है। और अगर हम इसको Ctrl+X कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएगी। नाउ माई ग्रेड 3 फाइल इज देयर इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर ग्रेड 3। सेम एज मैं ग्रेड 4 को भी कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 फाइल मैंने उठाई, आई हैव मूव्ड इट टू ग्रेड 4 एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 आई हैव मूव्ड इट टू ग्रेड 5। सो नाउ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स के अंदर मैं इससे रिलेटेड और भी फाइल्स रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 3rd ग्रेड से रिलेटेड स्टूडेंट्स की नेम है इसमें। मुझे चैप्टर से रिलेटेड कोई मटेरियल रखना है, मैं वो रख सकती हूँ। मुझे कोई पीपीटी रखनी है, मैं वो रख सकती हूँ। मुझे कोई वीडियोस रखनी है, मैं वो रख सकती हूँ। और अगर मैं इस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बनाना चाहती हूँ, दैट ऑल्सो आई कैन क्रिएट। उसके लिए मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू ओपन द फोल्डर। मैंने ग्रेड 3 का फोल्डर ओपन किया एंड अगेन आई नीड टू राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। नाउ माई न्यू फोल्डर इज देयर। और अब इस फोल्डर को फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया फोटोज। सो नाउ आई कैन कीप द फोटोज ऑफ ग्रेड 3 इन दिस। दिस इज हाउ वी कैन make our system systematically, we can arrange our system systematically। इससे क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल्स जो है आप बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। अब एज आई नो कि अगर मुझे ग्रेड 3 से रिलेटेड कोई भी मटेरियल ढूंढना है तो मुझे ग्रेड 3 क्लिक करना पड़ेगा और मुझे ग्रेड 3 से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रेड 3 की फोटोज देखनी है, ऑल वट आई हैव टू डू इज फोटोज पे क्लिक करूँगी और मैं इस फोल्डर के अंदर फोटोज रख के एंड आई कैन जस्ट चेक इट। सो फोल्डर से क्या है, हमारा जो डेस्कटॉप है, हमारा जो सिस्टम है, वो बहुत सिस्टमेटिकली हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, हमें डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। सो जितनी ज़्यादा कोशिश करो कि डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन के आइकन्स रहें, आपकी इस तरह की फाइल्स नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये मेरी फाइल्स आप देख रहे हो, लोगो, DPS और चैप्टर 20, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इस तरह से आप अपनी फाइल्स को फोल्डर में रखोगे तो वो क्या है, बहुत सिस्टमेटिक रहेगा। तो ट्राई टू ओनली कीप द एप्लीकेशंस ऑन द desktop. Now I want to move these folders to the drive। मैं इन folders को drive में डालना चाहती हूँ desktop की जगह। तो मैं क्या करूँगी, I am having icon over there this PC। मैंने this PC के ऊपर क्लिक किया। As you can see 3 drives are there, C, D and E। C ड्राइव हमारी जो होती है बेसिकली वो हमारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के लिए होती है, जो हमारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है।
तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ भी ना रखें, इसके अंदर सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होते हैं, सिस्टम इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं वो होती हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि डी या ई ड्राइव के अंदर हम लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये तीनों फोल्डर ई ड्राइव में लेके जाने हैं। द सेम वे आई विल ओपन द ई ड्राइव एंड आई अगेन द सेम वे, मैं इसको अगर कॉपी करना चाहती हूँ तो आई विल प्रेस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो नाउ यू कैन सी ग्रेड 3 के दोनों फोल्डर आर देयर, डेस्कटॉप पे इट इज देयर एंड ई ड्राइव में ऑल्सो इट इज देयर। एज यू कैन सी ये ई ड्राइव खुली हुई है, ई ड्राइव में ऑल्सो इट इज देयर। लेकिन अगर मुझे इसे कट करना है वहाँ से, तो वट आई ऑल नीड टू डू इज कंट्रोल X and I just need to control V. Now my grade 3 folder is cut from there and it is pasted there. Now grade 4 control plus X and control plus V. Grade 5 control plus X and control plus V. So all the files are there. I have cut it from the desktop and I have pasted it in the drive. This is how I can create the folder, move it from the one place to another, one location to another, और उसको cut copy paste हम किस तरह से कर सकते हैं. So these folders will make your system very clean और systematically, so that everything will be arranged. आपकी सिस्टम में जो सारी चीज़ें अरेंज रहेंगी और आप उसको अच्छे से देख सकते हो. So student, अगर आपके कंप्यूटर में, बिकॉज नाउ अ डेज यू आर यूजिंग द फाइल्स, आप हर तरह की फाइल्स यू आर यूजिंग, मतलब कभी SST का काम आ रहा है, कभी साइंस का आ रहा है, कभी कभी मैथ्स का आ रहा है, कभी हिंदी का आ रहा है, कभी इंग्लिश का आ रहा है. सो अपना एक अलग अलग सब्जेक्ट का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर अपनी फाइल्स को सेव करके रखो. क्वेश्चन आंसर्स अलग रख सकते हो, बुक वर्क अलग रख सकते हो. और इससे आपको क्या होगा, वेन एवर यू विल बी रिक्वायरिंग अ फाइल, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी ईजिली अवेलेबल टू यू. सो इट विल हेल्प to make your computer very systematic. Try it and it will be very beneficial for you. Bye students, we will meet next week with something new tips for you.